Good morning, students. I hope you all are fine and you remember that last week we started with the chapter political parties, wherein I explained you what are political parties and why do we need political parties. Then I gave you the definition of political party and I also asked you to cram it up because sometimes CBSE asks a direct question, define political party. Then we did the components of a political party and we started with functions, and I could only do the first function wherein we discussed that parties contest election. So this is the most basic function in any democratic country, that political parties, they contest election. In most democracies, elections are fought only among the candidates put up by political parties. Parties select their candidates in different ways. I had already explained you this, that in USA, the members and supporters of a party, they choose their candidate, and in other countries like India, the top party of the leader, they choose that who will be contesting the election. So we will start with the next function. Parties put forward different policies and programs. So this is the most basic function of any political party, that political parties, they put forward different policies and programs so that the voters can choose for them. We may have liking for a certain political party because of the kind of the policies and programs that they carry. Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society. So not necessarily that I like the ideology of BJP, so you would also like the same. It varies from person to person. No government can handle such a large variety of views. India is a diverse country, and in that case, handling such a large variety of views is not possible. So, different political parties have different ideology, therefore, they put forward their ideology, and then it is up to the people that which ideology do they like and which political party would they vote for. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. So whatever possible, they club the number of views that is shared by the people, and they try to come up with a holistic approach so that they can fulfill the hopes and aspirations of all the people, and as far as possible they do it. But still there will always be a section of society who will not be happy with the one or the other political party. A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. So a vast multitude मतलब होता है large in number. तो बहुत सारे ओपिनियंस को क्लब करके कुछ बेसिक आइडियोलॉजीज पे वो लोग सेटल डाउन करते हैं, एंड देन अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी. सो फिर जो गवर्नमेंट बनती है दैट मस्ट वर्क ऑन द सेम पॉलिसीज, दैट इज़ जो उनके व्यूज़ थे उसी लाइन पे उनको काम करना चाहिए. फाइन, चलो नेक्स्ट. पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री. अब जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, उनके मेंबर बैठेंगे लेजिस्लेचर में. ओके, तो लेजिस्लेचर में जो बैठा वो क्या बनाएगा, वो लॉज बनाएगा. तो फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस. इस पॉइंट को बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, एंड दिस मीन्स कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लेजिस्लेटर्स में बैठते हैं. तो जो लेजिस्लेटर्स बन गए, जो लेजिस्लेचर में बैठ के अब वही लॉ बनाएगा. तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, तो वो जो पार्टी के लीडर होते हैं वो उन्हीं के डायरेक्शंस पे जाते हैं. इट मे हैपन दैट समटाइम्स दे डोंट लाइक द डिसीजन ऑफ द लीडर ऑफ द पार्टी, बट ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पार्टी का मतलब एक टीम है, तो आपको एक टीम के जैसे काम करना है. Even if you are not agreeing with the views, you have to support the views. You have to go with the decision taken by the leader or the major positions in the political party. If you don't agree, it's better you may resign. So this is called as collective responsibility. Parties form and run governments. As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. तो parties, political party के जो लोग हैं वही सरकार बनाते हैं. Parties recruit leaders, train them and then make them ministers to run the government in the way they want. तो political party आपस में से ही
लोगों को रिक्रूट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, ओके उनको एक प्रॉपर मिनिस्ट्री देने से पहले, दैट इज़ कैबिनेट मिनिस्ट्री देने से पहले उनको कभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पोर्टफोलियो देते हैं। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 मिनिस्टर्स होते हैं, ओके सो दे आर नॉट स्ट्रेट अवे गिवन द पोस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, so not directly that can be handed over to them, so they are trained and then they are given independent ministries so that they can run the government in the way they want. Those party that lose in the elections play the role of opposition. तो opposition का काम क्या है? To oppose everything and propose nothing. No, that does not mean that. It is only a famous saying by a political scholar. Opposition basically ruling party के flaws निकालता है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमारा अधिकार है ये जानने का कि गवर्नमेंट एक्चुअली क्या कर रही है। तो वी डोंट वांट टू नो ओनली द गुडी एक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो अपोजिशन पिक्स आउट द फ्लॉज बट समटाइम्स इट क्रॉसेस द लिमिट्स, ओके और वो ऐसे ही बेकार की बातें करने लगते हैं और सब चीज़ में फ्लॉ निकालने लगते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं एनीथिंग दैट इज डन बाय द साइड ऑफ बीजेपी, कांग्रेस हैज़ टू पिक सम और द अदर फ्लॉ इन इट। इफ देयर इज अ सर्जिकल स्ट्राइक दे वांट अ प्रूफ ऑफ इट, okay so sometimes it is like they go beyond their constitutional role. So the parties that lose in the election, जो election हार जाते हैं, जो majority vote नहीं garner कर पाते हैं, they are called as opposition and they play the role of opposition. And what do? They voice different views and criticize government for its failures or wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. Parties shape public opinion. अब क्योंकि आपको पब्लिक के हिसाब से काम करना है, सो दे रेज एंड हाईलाइट द इशू विच इज़ द मेजर इशू ऑफ द पब्लिक. पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेजर ब्रांच चलो दिल्ली में होगा या जो भी उनका हेडक्वार्टर होगा, लेकिन ऑल अराउंड द कंट्री उनके छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स हर स्टेट में, रीजन्स में होते हैं. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups. Now what is a pressure group? Pressure group is an extension of political party. जो basically directly politics में नहीं आ सकते हैं, वो small groups बना लेते हैं जिसे हम pressure group बोलते हैं. This is how they create pressure on the government. उनकी ideologies वही होती हैं जो political parties की होती हैं, लेकिन वो लोग डायरेक्टली पॉलिटिक्स में एंटर नहीं कर पाते हैं, तो एक छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं टू क्रिएट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल. पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल. तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो मूवमेंट लॉन्च करती हैं क्योंकि कभी कभी कोई मेजर कॉज होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज से फुलफिल नहीं कर पाती हैं. तो पीपल को ये बिलीफ दिलाने के लिए कि वी आर विद यू, समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, दैट इज दे नीड टू मेंटेन अ हार्मोनियस बैलेंस. जो पीपल का ओपिनियन होता है वही पॉलिटिकल पार्टी को उसी लाइन पे काम करना होता है. Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by government. तो गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या है? दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर दैन अ गवर्नमेंट ऑफिसर. तो पॉलिटिकल पार्टीज लोकल लेवल पे भी काम करते हैं, बॉटम मोस्ट लेवल पे भी. Okay, for the people of the core rural areas, because for them it is not possible to directly go to the high level authorities. That is why the people, they feel close to parties even if they do not fully trust them. So parties have to be responsive to people's needs and demands, otherwise people can reject those parties in the next election. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिस्पॉन्ड करना है पीपल को, उनके नीड्स को, उनके डिमांड्स को, नहीं तो 5 years के बाद पीपल जो हैं वो उनको इलेक्शन में रिजेक्ट कर देंगे. नेसेसिटी. The list of functions in a sense answers the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. तो हमें क्यों चाहिए? क्योंकि ये सारे functions कौन perform करेगा? Political parties. But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. अगर सब निर्दलीय लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं निर्दलीय, सब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो ये प्रोमिसेस जो पीपल को हुए हैं या मेजर पॉलिसी चेंज वो कैसे आ पाएगा? जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, एक टीम के जैसा काम नहीं करेंगे,
तो कभी भी गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं हो पाएगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स किसको अकाउंटेबल होंगे? सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ओके, कि अपने लोकेलिटी के लिए क्या कर रहे हैं, बट पूरी कंट्री के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो इसीलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है। ऑल्दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट भी करते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन आप बाद में देखिए वो किसी न किसी सरकार का, किसी न किसी कोएलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनते ही। इंडिपेंडेंट आप कैसे काम करेंगे? यू नीड टू वर्क एज अ टीम, देन ओनली यू कैन बी पार्ट ऑफ अ मेजर पॉलिसी चेंज. We can also think about it by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states. तो parties do not contest formally. It is generally noticed कि village भी जो है it gets split into more than one faction, division में, each of which puts up a panel of its candidate. तो ये पार्टी भी तो यही करता है, वो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड हो जाता है और हर एरिया से एक कैंडिडेट को कंटेस्ट कराता है इलेक्शन. इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो नेसेसरी हैं सो दैट दे कम अप एज अ टीम एंड दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आर कंट्री, हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं इलेक्शन में और वो रिप्रेजेंटेटिव हमें रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, वो हमारे ही होप्स और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है. As we have seen, large societies need representative democracy. As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. तो जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी हो गई हमें एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी चाहिए, क्योंकि अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होगा तो एनार्की हो जाएगा. एनार्की का मतलब लॉलेसनेस. और एक अथॉरिटी चाहिए जो रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए. That's the need of a political party. They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. तो एक तरीका जो सोचा गया यही था कि डिफरेंट ग्रुप बनेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो इलेक्शन जीतेगा वो लेजिस्लेचर में बैठेगा और वो लोगों के लिए लॉस बनाएगा. और क्योंकि वो इलेक्ट होके आया है, लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होंगे. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. तो ये जितने भी needs हैं, that is fulfilled by the political parties. Thus we can say that parties are a necessary condition for a democracy. इसीलिए political parties ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वो group of people है जो हमारे लिए काम करते हैं. तो जब ये ग्रुप बनेगी, इनके आइडियोलॉजी सेम होंगे, ये टीम जैसे काम करेंगे, तभी ये वेलफेयर ऑफ द कंट्री इनका मेन एजेंडा होगा. अगर ये इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो ये कभी भी पूरी कंट्री को एज अ होल सर्व नहीं कर पाएंगे. ये इंडिविजुअली कॉन्स्टिट्यूएंसी को सर्व करेंगे, तो फिर कंट्री में इम्बैलेंस हो जाएगा. कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद ज़्यादा डेवलप हो जाए और कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल अंडर डेवलप्ड रह जाए. ओके, एज इन द केस इन आवर कंट्री स्टिल कुछ स्टेट्स आप देखिए, बिहार, झारखंड, ये अभी भी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं और कुछ स्टेट्स ज़्यादा डेवलप कर गए हैं. सदर्न स्टेट्स की लिटरेसी रेट इतनी हाई है, हमारे इधर लिटरेसी रेट आज भी बहुत पुअर है. सो इसी तरह क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटे छोटे एरियाज में भी हम इतने इम्बैलेंस देखने लगेंगे. दैट्स वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि कंट्री वाइड एक सेम आइडियोलॉजी कैरी हो सके. I hope I am clear with this, and you will revise whatever I have taught. You will relate things with the book, okay, and we'll meet again in the next lecture.